Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication, to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform, will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again for a different subject, because normally you're used to whenever you look at me, हाँ भाई अभी कुछ calculations होने वाले हैं, कुछ debit, credit, journal entries, ledger, final accounts, something connected to accountancy. But no, this is different. It's the same channel, but it's a different angle of me teaching you. So we continue with the subject of organization of commerce and management, in which the very first chapter is principles of मैनेजमेंट. बाकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पे ध्यान मत देना, उसके लिए अभी तक टाइम है. लिटिल बाय लिटिल वी विल कीप ऑन गोइंग अहेड. इन माय लास्ट लेक्चर वेयर आई इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर चैप्टर, हमने डेफिनेशन पढ़ा था, जो मैं आज रिपीट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि देयर इज़ नो मतलब ओके अगर मैं रिपीट करने जाऊँ, क्योंकि वो पिछले लेक्चर का मुद्दा था, पिछले लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस्ड है. बट देयर वर अराउंड 7 डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो हमने, नेचर ऑफ प्रिंसिपल जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे, एक एक करके मेरे स्क्रीन के पीछे आते जा रहे हैं, और आखिर में हमने उसमें से एक अजीब ही सही बट शॉर्टकट, सो दैट यू कैन होपफुली रिमेंबर these points develop किया था, which was face pug G. Okay, so yes, it may sound absolutely childish, absolutely stupid for many cases. ये क्या है face pug G? Please note, this is the month of June. आपको भी पता है, मुझको भी पता है, but yes, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जब एग्ज़ाम नज़दीक आएगा and you have paid attention, put your hard work in so many subjects, जब इतने subjects, इतने chapters आप cover up करोगे, तो in all probability your mind may forget the first chapter's first answer. क्यों नहीं रे? Because there are so many chapters, there are so many subjects. So this very childish shortcut will help you remember something. तो भाई ऐसा ही है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग. ओके, अगेन मैं सभी व्हाट यू कॉल सम्स के लिए, वेल नॉट सम्स, आंसर्स के लिए ये इसे शॉर्टकट नहीं दूंगा मैं. ओके, क्योंकि वो सिलेक्टिव है, ताकि अगर आपको मे बी एक 15, 16, 18 मिल जाए, तो एटलीस्ट उतने क्वेश्चंस का मुसीबत कम हो जाएगा. नाउ वी डिड दिस लास्ट टाइम, दिस वाज एप्लीकेबल फॉर
नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टुडे इज आवर सेकेंड मुद्दा। एंड आज का लेक्चर किस पे बेस्ड है? चैप्टर वही है, चैप्टर का नेक्स्ट एपिसोड है विच इज सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट टाइम इट वाज नेचर, ओके, मतलब उसका स्वभाव क्या है, गुस्सा, ओके, जेलस, खड़ूस, नहीं, नेचर। सिग्निफिकेंस मतलब सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होना। अगर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नहीं होगा तो क्या फर्क होगा, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक? देखो भाई, अगर है तो ऑब्वियसली उसका सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस तो होना चाहिए ना। फर्स्ट, प्रोवाइड्स, सो वी आर स्टार्टिंग, प्रोवाइड्स यूजफुल इनसाइट टू मैनेजर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनसाइट? वो दरवाजा होता है ना, बंद होता है, उस तरफ पे नॉक नॉक, टिंग टोंग, कोई आता है, एंड देन इफ यू ओपन अप द डोर टू अ स्ट्रेंजर, इट्स अ लिटिल बिट ऑफ फियर, डर लगता है। देन मेरे को जानना है कि कौन है उस तरफ। हाँ, तो देयर इज अ स्मॉल पीप होल, छोटा सा, उसके अंदर आप देखते हो, ओके। व्हाट डज दैट प्रोवाइड? एन इनसाइट, you can see, well, you can see through inside, outside, okay. So but that is something here. Principles of management provides an insight to managers, okay. So this gentleman, suit boot, okay, is, I can say, a manager. Insight का मतलब किस चीज में वो देख पाता है। वेल, यहाँ पे कुछ लिखा पढ़ी आ रही है, हम लोग उसको पढ़ते हैं। एक मैनेजर एक ऐसा इंसान है, ओके, जिसको काफ़ी डिसीजंस लेने पड़ते हैं, एंड उसका मंडे टू सैटरडे 9 o'clock टू 6 o'clock जो भी उसका शिफ्ट का टाइम है, द मेन जॉब ऑफ अ मैनेजर, सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? डिसीजंस लेना, ओके। डिसीजंस लेना, निश्चय, डिसीजंस लेना कोई सिंपल बात नहीं है, ओके। Because when you take a decision, okay, not everybody is capable, okay, मतलब वो दमखम सब में नहीं होता डिसीजन लेने का। बहुत लोग जब टाइम आता है डिसीजन लेने का घबरा जाते हैं, शेकी डिस्को चालू हो जाता है, ओके, बिकॉज दे कैनॉट, पसीना बहने लगता है, ओके, दे गेट एंशियस, ओके, एंजाइटी भी बढ़ जाता है, ओके, बिकॉज दे कांट टेक अ डिसीजन, okay, they can follow a leader who takes a decision, they can't take a decision. तो I repeat, जिगरा होना चाहिए ना। जिगरा किधर है उसमें जाते नहीं हम लोग, ओके। सर तुमने गलत एरिया दिखाया जिगरा का, इधर तो दिल होता है, ओके। जिगरा होना चाहिए डिसीजन लेने का। एवरीबडी कांट डू दैट, ओके। सो मैनेजर्स आर सिलेक्टेड टू डू दैट, एंड अ मैनेजर नोज, जो निर्णय मैं लेता हूँ उसका असर मेरे पे तो होगा ही होगा, मेरे पीछे जो 50 लोग हैं ना उस पे ज़्यादा होगा, तो वो असर अच्छा होना चाहिए। अ लीडर ऑफ अ कंट्री व्हेन टेक्स अ डिसीजन, वो उस पर कम असर होता है, उसके पूरे देशवासियों पर असर ज़्यादा होता है। देन दैट डिसीजन कांट बी हवे में, नो, इट हैज़ टू बी कैलकुलेटिव। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब एक मैनेजर सीखता है, वो जो निर्णय उसको लेने हैं, मैं ये ऊपर जो दिया है ना वो पढ़ लेता हूं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर एन आउटकम ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ वेरियस प्रोफेशनल पीपल हु मेड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। रास्ता चलता हुआ छोटू, ओके, नो। अंटू बंटू पंडू, नो। वेल, हो सकता है उन्होंने बनाया होगा, ओके, दे कैन बी ग्रेट थिंकर्स। आई एम जस्ट सेइंग कि बाबा प्रोफेशनल लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने ये प्रिंसिपल्स बनाए हैं ताकि जो मैनेजर के पोजीशन पे बैठे, दे टेक द करेक्ट decisions. It says the use of these principles is helping managers about the manner तरीका in which they should act in different situations, because there are so many situations. A bank manager बैठा है बैंक में, सामने कस्टमर विभिन्न वैरायटी के आते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, ओके। देयर आर डिफरेंट कस्टमर्स, अलग अलग ज़रूरतें, अलग अलग उनका व्यवहार और नेचर होता है। मैनेजर तो एक ही है ना,
उसको जो गुस्से वाला है उसको भी हैंडल करना है, जो खुश है उसको भी हैंडल करना है, जो इंक्वायरी ओके इंक्विजिटिव तेनाली रामा वाला टाइप का है उसको भी हैंडल करना है. तो द मैनेजर हैज़ टू हैंडल ऑल द सिचुएशंस एंड ऑल द सर्कमस्टेंसेस. एंड इसमें वो हैंडल किस तरह उसको करना है, उसका जो इंसाइट होता है कि वो कैसे देखे कि वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब वो पढ़ता है उसको वो समझ में आता है. सो द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड एन इंसाइट टू द मैनेजर. ओके, दैट्स फर्स्ट पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट क्या कहता है, हेल्पफुल इन efficient utilization of resources. Okay, what do you mean by resources? You see, एक कंपनी में एक चलो कंपनी नहीं, कंट्री भारत देश और एनी देश, चलो हम लोग भारत देश की बात करते हैं. भारत देश के पास कौन से रिसोर्सेज है? दो. एक है नेचुरल रिसोर्सेज, उसको आप कह सकते हो मटीरियल रिसोर्सेज, और एक है human resources. Me and you, we are human beings and we are human resources for the country of India. And what are the natural material resources? The minerals, okay, जो हमारी ज़मीन में पाए जाते हैं, okay, उसको हम कह सकते हैं material resources. Okay, even in a company there are these two kind of resources. एक होता है material resources, एक होता है ह्यूमन रिसोर्सेज. ऊपर लिखा है फिजिकल रिसोर्सेज, मटेरियल होता है, मनी होता है, मशीन्स होता है, एंड ह्यूमन बीइंग्स, जो लोग वो मटेरियल को लेकर वो मशीन को लेकर काम करते हैं. क्या कहा गया है? द बेसिक फंक्शन ऊपर ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक प्रॉपर बैलेंस बिटवीन दीज रिसोर्सेज बाय पुटिंग देम टू ऑप्टिमम यूज एंड कंट्रोल ऑन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. I repeat myself. जैसे the government of India cannot what you call just go on digging, mining and remove, मतलब जो हमारे नेचर में रिसोर्सेज है उसको इतना आप निचोड़ लो कि वो खत्म हो जाए. अगर वैसा होगा तो क्या होगा? काफ़ी बुरा होगा. राइट नाउ देर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट द एनवायरमेंट. आपको ये पता है? अगर नहीं पता है तो फिर अभी सीख लो. एवरीथिंग जो आप देखते हो ऊपर नीचे दाएं बाएं पीछे आपके एनवायरमेंट में, ओके, सारी चीज़ों की ज़रूरतें है. वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको सांप से, वो मेरा इतना अच्छा सांप नहीं है, ओके, बट अगर आपको सांप से डर लगता है एंड यू प्रे सारे सांप दुनिया के ख़त्म हो जाए, सारे सांप दुनिया के ख़त्म हो जाए. देखो, अगर ऊपर वाला सुन भी लेगा ना और सारे सांप ख़त्म हो जाएंगे, दूसरा बवाल पैदा हो जाएगा. दोज स्नेक्स, ओके, कीप सर्टन पेस्ट अवे. ओके, सो देयर इज़ अ रैट स्नेक जो नाम से ऑब्वियसली रैट का शौकीन है. तो वो जब रैट का सेवन करता है तो रैट की जो तादाद है, क्वांटिटी, वो एक लिमिट में रहती है. ओके, व्हाट एम आई ट्राइंग टू से, व्हाटएवर यू सी इन द एनवायरनमेंट, वाइल्ड एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ओके, सबकी ज़रूरत है, सबकी लिमिटेड क्वांटिटी में ज़रूरत है. दे कैन नॉट बी वेरी लेस, दे कैन नॉट बी टू मच. ज़रूरत है. सो सिमिलरली उनकी ज़रूरत और इंसानों की ज़रूरत दोनों की है, तब जाके ये दोनों मिलके ये दुनिया की गाड़ी चलती है. सिमिलरली इन अ कंपनी, वो कुछ ज़्यादा हो गया, ओके, बट कमिंग बैक टू अ कंपनी, इन अ कंपनी मटीरियल, मशीन, मनी एंड मैन, मतलब ह्यूमन बींग्स, ये सब एम सबकी ज़रूरत है. द कंपनी के नॉट से मैन की क्या ज़रूरत है, निकाल दो, हम लोग ना ऑटोमेट करेंगे, एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटेड. मतलब रोबोट्स, मशीन्स विल डू द जॉब. अ कंपनी बाय द नेम ऑफ
Tesla, big company, okay, a very great scientist, inventor by the name of Nikolai Tesla, okay. I presume वो सर्बिया नामक एक कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो उनके नाम पे बेस्ड ये कंपनी टेस्ला जो इलेक्ट्रिकल गाड़ीज बनाती है, वो कंपनी ने शुरुआत में डिसाइड किया कि हमारे जो गाड़ी बनेंगे वो ज़्यादातर जो रोबोट्स होते हैं वो बनाएंगे। बट जब उन्होंने पूरा दारोमदार रिस्पॉन्सिबिलिटी रोबोट्स पे डाल दिया, दे लेटर ऑन रियलाइज कि नहीं, रोबोट से भी गलतियां हो रही है, और वो गलती एक नहीं है, मल्टीपल हो रही है। एवरीथिंग कैन नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन अ रोबोट। देन दे सेड नो नो नो, लेट्स डू लिटिल जॉब विथ रोबोट्स, मशीन्स, लेट्स इन्वॉल्व पीपल। बिकॉज अगर एक रोबोट गलती करता है, आप उस रोबोट को क्या करोगे? चिल्लाओगे, ए तूने ऐसा काम कैसे किया? भैया वो तो कोई इमोशन देने वाला नहीं है, ओके। इनफैक्ट वो तेरे सामने वही गलत काम कंटिन्यू करता जाएगा। ऑब्वियसली इट्स अ प्रोग्राम, इट्स अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ओके। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी भी आगे चले जाए, अ ह्यूमन बीइंग इज अ ह्यूमन बीइंग, विल रिमेन अ ह्यूमन बीइंग। भले ही उसको इमोशंस है, बट एटलीस्ट वो अपनी गलती समझता है और रेक्टिफाई कर सकता है। रिसोर्सेस अ कंपनी हैज, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टीच अ मैनेजर कि ये रिसोर्सेस को इक्वली कैसे यूज करना है, ये ज़्यादा नहीं वो ज़्यादा नहीं, इक्वल, मटेरियल भी और स्टाफ भी इक्वल यूज होना चाहिए। नेक्स्ट, साइंटिफिक डिसीजंस। व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक डिसीजंस? ये क्या है? लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस रे। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक टू यू, मैं तो कॉमर्स का आदमी हूँ, तो ये बस मेरे लिए तस्वीर है, फोटो, ओके, और मेरे को कुछ समझ में आता नहीं है। बट येस, द डिसीजंस दैट आर टेकन इन साइंस, दे आर नेवर हवे में, कभी नहीं होते हवे में, ओके। दे आर ऑल बेस्ड ऑन सर्टन फैक्ट्स, नंबर्स, कैलकुलेशंस पे बेस्ड होते हैं। इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अ साइंटिफिक डिसीजन मीन्स, मतलब क्या होता है? अ सिस्टमैटिक और अ बैलेंस्ड डिसीजन। गुड डिसीजन शुड बी बैलेंस्ड। एक सरकार जब एक डिसीजन लेती है तो वो सिर्फ इस कम्युनिटी के लिए या उस कम्युनिटी के लिए या सिर्फ मेल्स के लिए या फीमेल्स के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट हैज टू बी अ बैलेंस्ड डिसीजन, सबके लिए होना चाहिए। प्रिंसिपल्स ट्रेन द मैनेजर्स टू हैंडल क्रिटिकल सिचुएशन टैक्टफुली, बराबर से, ओके। Otherwise, the managers have to work always with trial and error method. What do you mean by trial and error method? Because the manager does not know कि क्या होगा, तो क्या बोलता है, मैं ना ऑप्शन ए ट्राई करता हूं, चला तो चला, नहीं तो बंद कर दूंगा, ऑप्शन बी ट्राई करूंगा, चला तो चला, बंद कर दूंगा, ऑप्शन सी, अरे ऑप्शन ए में इतना नुकसान होगा, बी में इतना नुकसान होगा। थोड़े सोच के डिसीजन लेना, टैक्टफुली। यूर अ मैनेजर, इट्स योर जॉब, तुम्हारा काम है, तो हम और करता क्या है, तुमको डिसीजन लेना है। तो दैट मैनेजर जो डिसीजंस लेता है, अगर उसने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सीखा है तो वो डिसीजंस साइंटिफिकली ले सकता है, ओके। मतलब कि हवे में नहीं, कुछ सोच के, कुछ अनुमान लगा के, कुछ कैलकुलेट करके, ओके। इट सेज विद द यूज ऑफ वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये हम आगे भी सीखने वाले हैं। वन कैन गेट एन आइडिया ऑफ हाउ टू एनालाइज द सिचुएशन, टू सर्च ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड देयर results. If there is a certain problem that the employees and the laborers are facing, they will go to the manager. They will ask the manager, give us a solution. A manager has to think about the options. क्या मैं ऑप्शन ए करूंगा तो खुश होगे, ऑप्शन बी करूंगा तो खुश होगे, ऑप्शन ए करूंगा तो कितना खर्चा होगा, ऑप्शन बी करूंगा तो कितना खर्चा होगा, कि भाई उनका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, सस्ते में हो जाए, एवरीबडी विल बी हैप्पी। टैक्ट सबके पास नहीं होता, ये गुण, ये क्वालिटी मैनेजर्स को सिखाया जाता है। नेक्स्ट, चौथा मुद्दा क्या? अंडरस्टैंडिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये दिस हैज बीन डन प्रीवियसली ऑल्सो। अ कंपनी, ओके, जिसको मैनेजर्स चलाते हैं, ओके, अलग अलग लेवल्स के ऊपर, ओके। क्या वो कंपनी सिर्फ
प्रॉफिट को अपना टारगेट रख सकती है? बिल्कुल नहीं। यस, दैट इज वन ऑफ द एजेंडा। इंडेक्स में उनका एक एजेंडा है, प्रॉफिट कमाने का है, ओके। बट अगर आप प्रॉफिट कमाओ सबके साथ में, ओके, दुनिया का ख्याल रखकर, एटमॉस्फेयर का ख्याल रखकर, एनवायरनमेंट का ख्याल रखकर, जीव जंतुओं का ख्याल रखकर, ह्यूमन बीइंग का ख्याल रखकर, कंज्यूमर्स का ख्याल रखकर, सोसाइटी का ख्याल रखकर, नेचर का ख्याल रखकर, डोंट जस्ट पुट मनी इन योर पॉकेट, डोंट जस्ट थिंक अबाउट मनी मनी मनी। हाँ, बराबर, मनी है तो ही कंपनी आगे जा सकती है, बट अगर आप प्रॉफिट कमाने के चक्कर में दूसरों को पेन दो, पेन तकलीफ दो, okay, how long will you earn profits? Okay, if there is no public, okay, जिसको आपने पेन दिया, okay, so the principles of management teach the management what, baba, that if you have to run this company you have to also keep in mind social responsibility। हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, we are a big company, but हमको वातावरण को, नेचर को इम्पोर्टेंस देना है, हमको एक साथ होकर, ओके, हमको गवर्नमेंट के साथ होकर, एनजीओस के साथ होकर, हमको पब्लिक के साथ होकर, सरकार के साथ होकर, मिलकर काम करना है। हमको सिर्फ जेब में पैसे नहीं डालने, ओके। हाँ, पैसा ऑब्वियसली हमको कमाना है, बट हमको ये सारी चीज़ों का, ये हमारी क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट सेज। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आगे, दे आर नॉट डेवलप्ड only from the viewpoint of handling the resources effectively, but they guide management, guidance management को देते हैं in understanding social responsibility of the organization. So when you know principles of management, you are taught कि there is something called as social responsibility, कि आपकी कंपनी के बारे में ही नहीं, कंपनी के एनवायरनमेंट में कौन कौन है, एम्प्लॉयज़ है, कस्टमर्स है, गवर्नमेंट है, सबके बारे में आपको सोचना है, ओके। तो दैट्स बिकम्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एनकरेजेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D कहते हैं इसको। हर कंपनी में, बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़ी छोटी कंपनी में R&D डिपार्टमेंट ज़रूर होता है, वे पीपल आर थिंकिंग, ओके। You come, I come, you come, I come, everybody sit together and let's apply our minds. And let's think. When we think, you put little, I put little, you put little. We think and we develop something new. So, principles of management में मैनेजर्स को ये पढ़ाया जाता है कि बाबा आपको R&D में, प्रोडक्ट की R&D की बात नहीं कर रहा, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट की नहीं, ओके। कंपनी को जो चलाना है, उसके जो प्लान्स होते हैं, ओके, उसमें R&D, हाउ डू यू मेक एन इम्प्रूवमेंट इन द प्लान, बिकॉज यू आर डीलिंग विथ पीपल, यू आर डीलिंग विथ एम्प्लॉयज। येस्टरडे तक जो प्लान था वो मे बी कल नहीं चलेगा, थोड़ा आपको एम्प्लॉयज जनरेशंस में चेंज होते हैं। प्रीवियसली व्हेन समबडी यूज्ड टू गो टू अ कंपनी टू वर्क, दे नेवर थॉट दैट दे विल लीव द कंपनी। आपके डैडी या परदादा अगर एक कंपनी में काम करेंगे, मे बी उन्होंने 30 साल वहां पे बिताया होगा, क्योंकि दे नेवर वांटेड टू गो आउट ऑफ द कंपनी, दे वर हैप्पी। सुबह उठो, अपना टिफिन लो, जाओ, बस में बैठो, उतर जाओ, या कंपनी की गाड़ी रहेगी, उतरो, काम करो, शिफ्ट खत्म करो, वापस आ जाओ। 30 साल यही चला। बट नाउअडेज द वर्कर्स आर डिफरेंट। द वर्कर्स वांट टू, नहीं, ये कंपनी में कुछ खास हमको इंटरेस्ट नहीं, अब भी क्या नया सीखने को ही नहीं मिल रहा है। जब अरे, तो द मैनेजर्स हैव टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। ऊपर, इफ नीडेड, मैनेजमेंट कैन मॉडिफाई द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एज द मैनेजमेंट इज हैविंग द लिबर्टी, फ्रीडम, छूट, ओके, टू टेक द डिसीजंस एट देयर ओन, ओके। वो मैनेजमेंट को ऑब्वियसली, क्योंकि उनको कंपनी चलाना है। दिस ट्रेनिंग हेल्प्स इन डेवलपिंग, ये ऊपर है, ओके, scientific approach, okay, towards research and development and growth and development, okay। तो research and development करोगे तो growth and development होगा of the organization will grow। For example, उदाहरण,
R&D department always works on finding out new techniques in the field of production, finance, marketing, human resources, whatever the company is using, उसको और बेहतर तरीके से कैसे यूज़ किया जाए, नुकसान को कम कैसे किया जाए. If you are having the knowledge of the principles of management, then ये thinking आपको fit किया जाता है. You just cannot use the same plans again and again. Improvement लाना चाहिए. Research and development continuously होना ही चाहिए. Next one, second last, क्या है? Helps to coordinate and control. अच्छा, what coordinate करना है, क्या control करना है? Well, different employees, so you can see there, 4 लोग हैं. There are so many. Every employee brings a different thing to the table. मैनेजर ऊपर, एम्प्लॉइज नीचे, 4 लोग काम कर रहे हैं. चारों के गुण, क्वालिटीज अलग है. कोई इसमें अच्छा है, कोई उसमें अच्छा है, कोई उसमें अच्छा है. वेरी इंपॉर्टेंट. जब चारों लोग अपना अपना काम करते तो पूरा जॉब कंप्लीट होता है. मैनेजर का काम टू मेक श्योर कि बाबा जब वर्कर 1 काम करेगा तो ही वर्कर 2 चालू कर सकता है, तो ही वर्कर 3 चालू कर सकता है, तो ही वर्कर 4, और फिर उनका काम साथ में आएगा, पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, जाल बन जाएगी. अलग अलग धागा कुछ नहीं कर सकेगा. तो आई रिपीट, ये जो कोऑर्डिनेशन होता है ना, ओके, मैनेजर्स को काम करना पड़ता है ना, ऑब्वियसली क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन. किस में कोऑर्डिनेशन करना? मॉर्निंग शिफ्ट में जिसने काम किया उसका काम इवनिंग शिफ्ट वाला, दोपहर का शिफ्ट वाला आके कंटिन्यू करना चाहिए. कोऑर्डिनेशन. Because if there is no coordination, mungi मतलब क्या, ants behind me, okay, they are constantly working. Okay, आपने I'm not sure which standard के अंदर ना कभी चींटी की तो कहानी सुनी होगी. Constantly working and they are like super disciplined. अनुशासन, super disciplined. मतलब लाइन में जाते हैं ना तो मतलब there can be millions of ants. But they never leave the line. They never leave the line. कभी आपने क्या कहते हैं, मार्च फास्ट अगर आर्मी का, नेवी का देखा होगा, इट इज़ परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन. देर आर सो मेनी पीपल, बट द ट्रेनिंग इज सच दैट कोऑर्डिनेशन एकदम बराबर है. देन द आउटपुट लुक्स अमेजिंग, बहुत अच्छा दिखता है. तो उसी तरह कोऑर्डिनेशन होना कंपनी में. देर आर सो मेनी थिंग्स. देर आर men, there is material, there is machine, there is money, but if there is no link between them, किस बात का, किस फायदे की चीज़ें हैं ये? there has to be coordination. तो coming back to the text which helps me explain all of this which has been given. Management principles are the guidelines for better coordination. guidelines, okay, मतलब गूगल मैप होता है ना, गाइडलाइन. तेरे को यहाँ से वहाँ पे जाना है, यहाँ से वहाँ पे जाना है, ओके, गाइडलाइन देता है वो आपको, ताकि आप रास्ता ना भटक जाओ. ओके, इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू क्रिएट कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन अमंग डिफरेंट एम्प्लॉइज. यस, इफ समबडी गिव्स मी वन रिमोट, एक रिमोट है, एंड समबडी गिव्स मी वन मोर रिमोट, मैं सोचो 2 रिमोट है, और बोलेगा इसका ख्याल रख. ओके, ये रिमोट जेब में डाल दिया, हो गया. तू कल परसों तेरे को ऑफिस दे देगा. अरे टेंशन ही नहीं है, रिमोट है, किधर जाएगा, किधर नहीं जाएगा. बट अगर कोई मुझे 2 बच्चे दे के जाएगा, हमारे नहीं, ख्याल रखने के लिए, देन यार मोर टेंशन आ जाएगा. बिकॉज द चिल्ड्रन आर नॉट हैविंग द सेम नेचर. ज़रूरतें, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें अलग अलग होती हैं. 2 एम्प्लॉइज जो एक मैनेजर के नीचे काम करते, 2 तो काम करते ही नहीं ना, 20 काम करते, उससे ज़्यादा काम करते. हैंडलिंग पीपल, हैंडलिंग मशीन, हैंडलिंग मनी, हैंडलिंग मटीरियल इज ओके. हैंडलिंग मैन इज वेरी डिफिकल्ट. मैनेजर्स को ये करना पड़ता है. ओके, तो वो कैसे करे भाई? आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा. आप मैनेजर हो, आपको कंट्रोल करना पड़ेगा. बिकॉज इफ यू डोंट कंट्रोल, तो ये लोग जो टैलेंटेड तो है, ओके, बट इनकी टैलेंट्स में जो उभर के आता है, जो आउटकम आता है,
that has to be utilized in a manner that there is coordination such that the entire job can be done. So obviously this is also a significance of the principles of management. So जब लोग managers management ये सीखते हैं, then they learn all of this. Our last point, develops objective approach, very important. Now the thing is what, many of you would be, सर ये जो word है ना objective, सर वो मतलब वो true or false, match the column, answer in one sentence, multiple choice, KBC, सर does that mean objective? So देखो भाई वैसा तो नहीं है सोच में. सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लो, तो आप ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि सब्जेक्टिव हाय दैया, ओके, रोना धोना, दैट्स अ सब्जेक्टिव नेचर. अगर एक मैनेजर इमोशनल है, इमोशनल का मतलब हाय दैया हाय दैया, ओ मैंने इतना अच्छा किया नहीं बट आप मेरे इमोशन को समझो, ओके. अगर वो इमोशनल है तो वो डिसीजन सही नहीं ले पाएगा. अगर सामने गरीब है, पुअर क्लास, मैनेजर को दया आ गई, मैनेजर बोलेगा ये सब पैसा रख लो. अरे पैसा तुम्हारा है क्या, तुम्हारे पापा का कंपनी है, अरे किसी की मेहनत का पैसा है, ऐसे थोड़ी दे दिया. अरे नहीं वो मेरे में इमोशन में आ गया. अरे इमोशनल तुम नहीं रह सकता है, यू आर अ मैनेजर, यू कैन नॉट क्राई एट द टॉप ऑफ अ हैट. रोना का चलो हो गया, मगरमच्छ का आंसू, नो यू कांट डू दैट. दैट इज सब्जेक्टिव थिंकिंग. इमोशनल फूल, इमोशनल अत्याचार नहीं चलता. यू कांट बी लाइक दैट. वैसा आप वैसे तो मैनेजर तू बनी मत. अ मैनेजर हैज टू टेक हिज डिसीजंस ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, ऑन डेटा, ओके. उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव. इमोशन को परे रख, अलग रख. Because when you take a decision, I told you at the beginning of today's lecture, कितना टाइम हो गया, अराउंड हाफ एन आवर हो गया, 30 मिनट पहले आपको मैंने बताया था, ओके. वेरी इंपॉर्टेंट, a manager's decision is not a decision that affects him, it affects the people, his team, his employees behind him. He cannot take an emotional decision, नहीं, he has to be objective, okay. Taking decisions are extremely complex, okay. Sometimes a fire department, okay, if they are going into a burning house and they are 5 people to save, 5 लोग की जान बचानी है, बट इतना टाइम नहीं है कि पांचों के पांचों का जान वो बचा सके. इतना टाइम नहीं है, ओके. तो थोड़े टाइम में, 1 मिनट 2 मिनट में फिर बिल्डिंग नीचे आ जाएगी. दैट फायर मैन हैज टू टेक अ डिसीजन. सामने 5 है, मैं 5 को नहीं उठा पाऊंगा, किसको बचाऊं, ओके. ही कैन नॉट बी इमोशनल इन दैट, ही कैन नॉट बी, ओके. मतलब अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको वो उठा सकता है और एक साथ में 3 को लेके जा सकता है, ही शुड टेक दैट डिसीजन. ही शुड टेक अ डिसीजन जहां पे मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके. आई रिपीट, देयर आर मेनी पीपल इन मेनी सिचुएशंस जहाँ पे उनका डिसीजन का असर दूसरों पे होता है और वो डिसीजन सब्जेक्टिव नहीं ले सकते. being subjective as far as the company and management of people is concerned is being a fool. You can't do that. नहीं कर सकते हो, ओके. आपको फैक्ट एंड फिगर्स पे, डेटा, इमोशन को अलग रखो, ओके. सो दैट्स बेसिकली द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव अप्रोच. जब व्हेन यू लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो आपका जो नज़रिया है, सोचने की प्रक्रिया, वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव होता है. रोना धोना नहीं होता. रोना धोना हो सकता है, घर पे आप कर सकते हो, कंपनी में आप नहीं कर सकते हो. विद द हेल्प ऑफ वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वन कैन डेवलप एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ओके. सब्जेक्टिव भूल जाओ. मैनेजर्स कैन आइडेंटिफाई द बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, रूट कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स इन करेक्ट मैनर एंड कैन प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस ऑन इट, बट ऑब्जेक्टिव होकर, not by being subjective. Now we have gone through a certain number of muddas and there were 7 points. If you want to, which very quickly I will put it up on the board behind.
provides significance, importance of the principles of management, insight to managers, then utilization of resources, scientific decision, social जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल, एंड लास्टली ऑब्जेक्टिव अप्रोच. जस्ट bringing all of these together and in a manner, not in the same sequence but in a manner जहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसा जुगाड़ू वर्ड दे सकूँ जिससे आपको बाय हार्ट नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट जो मेन मुद्दे हैं वो आपको याद रखने पड़ेगी. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, साइंटिफिक डिसीजन, सोशल जिम्मेदारी, यूजफुल इंसाइट, इंसाइट का जो आई है ना वो हाईलाइटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. तो आपको क्या याद रखना है? वेरी सिंपल, दिस इज द OCM सब्जेक्ट एंड यू शुड यूज सर्स OC. मेरा OC, ओके, मी सर, ओके. सो आई रिपीट, बेसिकली व्हाट आर वी डूइंग, वो जो यू है ना, समझ जाओ रे, यू से आता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एस से आता है साइंटिफिक डिसीजन, ई से क्या आता है? कुछ नहीं, इसके लिए छोटा ई है, उससे हम लोग ने उसका एक वर्ड बना दिया. ओके, सो एस, सर के एस से आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई से आता है इंसाइट टू मैनेजर, आर से आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ओ से आता है ऑब्जेक्टिव अप्रोच, सी से आता है कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल. वेरी वेरी, यस, आई एम नॉट सेइंग सिंपल, बट आप जो अभी स्क्रीन पे है मेरे बगैर उसका स्क्रीनशॉट डेफिनेटली ले सकते हो, क्योंकि मैं जल्दी से स्क्रीन पे आ जाऊंगा. ओके, स्क्रीन से कुछ ज़्यादा ही लगाव है मेरा. सो फेस PUBG गिव यू अ डिफरेंट आंसर, यूज SIRS OC. दीज आर नॉट द व्हाट यू कॉल बेस्ट साउंडिंग शॉर्ट फॉर्म्स, दे आर नॉट, बट काम हो जाएगा, काम हो जाएगा. दैट्स व्हाट वी बेसिकली वांट, कि आपका थोड़ा काम कम हो जाए. सो दैट इज इट फॉर टुडे. वी कंप्लीटेड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ एक्चुअली वी विल बी, द नेक्स्ट टाइम आई मीट यू, गेटिंग इनटू द थियरीज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. कुछ बड़े बड़े लोग, वेल अभी तो वो गुजर चुके हैं, बट उन्होंने मैनेजमेंट के लिए कौन से थियरीज बनाए थे वो हम लोग नेक्स्ट टाइम से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और हमारे ये फर्स्ट चैप्टर की गाड़ी को आगे लेकर जाएंगे. अगर आपने ये चैनल की खुशखबरी ओके दूसरों तक नहीं पहुंचाई है तो कृपया करके दूसरों तक पहुंचा दीजिए. इन लेक्चर्स को आप शेयर कीजिए, बड़ी मात्रा में शेयर कीजिए. ओके, बड़ी लोगों के साथ में शेयर कीजिए ताकि ये चैनल की खबर दूर दूर के इलाकों तक जा सके. ओके, तब तक अपना ख्याल ज़रूर रखना. अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर का बटन नहीं दबाया है, बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा दीजिए. अगर कोई डाउट आपके जहन में है, आपकी थिंकिंग में है, तो कमेंट बॉक्स हमेशा उपलब्ध होता है. कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिए और वहाँ पे आपके डाउट आप लिख सकते हो जो इस लेक्चर के साथ में जुड़ा हुआ है. ओके, टेलीग्राम के ऐप के साथ में आप जुड़ जाइए ताकि वहाँ पर हम डेली बेसिस पर अगले दिन पे जो भी लेक्चर्स प्रीमियर होने वाले हैं उसकी जानकारी हम सारे बच्चों को देते हैं. ओके, आज के लिए इतना ही रखते हैं. मैं आपसे दोबारा जल्द ही मिलूँगा. ये मैं हूँ स्टीवन सर, ये हमारा चैनल है स्टीवन सर मेक्स इट ईजी, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए. आपके प्यार की सख्त ज़रूरत हमें है. Till the time we meet again, good day to all of you. God bless. Take care of your seniors and juniors. Take care of your family members. Have a wonderful, super duper day ahead. Till the time we meet again, take care. Bye.